In first episode, we will talk about what is OS or operating system. So OS stands for operating system. It is short form of operating system. Let's look at the definition first. An operating system is a software that manages computer, hardware, and software resources. Okay, the operating system, it's a software. It's nothing but software which we can install. So most of you have a little bit aware of. We need to, once we assemble the computer, all the hardware, right? So we have to fix the CPU and RAM and monitors. We have to plug it, and after that, a computer doesn't works. It actually works, but you cannot communicate it with it properly. So for that, what we need to do is we usually install operating systems like Windows XP or Windows 7 or Windows 11. And if you observe, it is nothing but a CD which has a software, right? That we need to install. So operating system is nothing but a special software which manages computer, hardware, and software resources both. Okay. So operating system is basically that holding piece which communicates with your RAM, your hard disk, your display, monitor, keyboard, and everything groups together to work seamlessly. Okay. Now, second point. It acts as a bridge between user and computer hardware. Simple. See, if you install Windows operating system, they have provide multiple application. Let's say very basic application like startup and shutdown. Windows has given very simple button to start up a computer or shut down a computer. You just have to go to start and shut down. Everybody knows it. It's simplicity. So for that simplicity of use, operating systems are very important. Okay. Now, third point is operating system provides essential services like file management. I have just given you an example. हमने अभी देखा कि file explorer, very basic application. हम जो just right click करके folders create करते हैं, text file create करते हैं, images copy paste करते हैं, right? So everything is file management. Okay. So that is this application provides us via Windows or any operating system. उसके बाद मेमोरी एलोकेशन, ठीक है, कहाँ पे कौन सी मेमोरी एलोकेट करनी है, कौन से प्रोसेस को कितना रैम एलोकेट करना है, कितने पेजेस एलोकेट करने हैं, कितना बफर एलोकेट करना है, ये हमें कुछ भी पता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे जो ऑपरेशंस हैं वो इंटरनली दैट कैन बी हैंडल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम्स. उसके बाद हार्डवेयर इंटरेक्शन. सो हम कीबोर्ड पे कुछ भी टाइप करते हैं. अगर हमने नोटपैड एक एप्लीकेशन है, राइट, नोटपैड एक एप्लीकेशन अगर हमने खोला तो वो एप्लीकेशन क्या करता है, बेसिकली इनपुट लेता है जो भी हम कीबोर्ड पे टाइप करते हैं और वो आउटपुट दिखाता है स्क्रीन पे या फिर जो भी मॉनिटर है. तो ये सारा जो एप्लीकेशन है वो बिहाइंड द स्क्रीन क्या करता है, वो बेसिकली जो भी मैकेनिकल है अपने माउस है या फिर कीबोर्ड है, ठीक है, ये सारे फिजिकल कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के. तो फिजिकल कंपोनेंट्स को वो जोड़ देता है एक साथ में. इट इज ऑल्सो नोन एज हार्डवेयर इंटरेक्शन. ठीक है. और उसके फिर अलग अलग हम थोड़ा अगर डीप में जाएंगे तो उसके अलग अलग ड्राइवर्स होते हैं. तो लेट्स से ये कीबोर्ड का अलग ड्राइवर होगा, माउस का अलग ड्राइवर होगा, डिस्प्ले का अलग ड्राइवर होगा. तो ये सारे ड्राइवर्स जो हैं वो बेसिकली हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं. एंड ये सारे ड्राइवर्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है. ठीक है, दैट इज द थर्ड पार्ट. एंड लास्ट इज यूज़र इंटरफेस. तो यूज़र इंटरफेस बेसिकली जो हमने एग्जाम्पल लिया कि जो हमें दिखता है कि आप कंट्रोल पैनल ओपन कर सकते हो, आपने सिर्फ डबल क्लिक किया और कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना या फिर जस्ट कोई भी फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करी तो वो एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाती है. वो सारा जो मतलब इसके लिए हमें कुछ कोड नहीं करना पड़ता, राइट. वो बहुत सिंप्लिसिटी और यूज़र फ्रेंडली मैनर में हमें दिखाया जाता है. सो दैट इज़ नोन एज यूज़र इंटरफेस. सो ये सारी जो चीज़ें हैं वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. अभी हमने जो बात किया वो मोस्टली हमने बात किया विंडोज़ के मैनर में. ठीक है, कि विंडोज़ एक्सपी या फिर विंडोज़ 11 है वो कौन कौन से तरीके से काम कर सकता है या फिर वो हमें क्या क्या बेनिफिट्स देता है वो हमने बात किया. बट देयर आर लॉट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स इन द मार्केट. और हम मतलब अगर मैं एग्जांपल दूँ तो विंडोज़ एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है. ठीक है, वैसे ही एप्पल का एक खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है विच इज़ नोन एज मैक ओएस. ठीक है, और वैसे ही बहुत सारे हैं और उसमें से एक लिनक्स भी है. तो दैट विल सी. सेकेंड पॉइंट देखते हैं. कर्नल इज अ कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी डायग्राम भी दिखा सकता हूँ जो सारे लोग सिखाते हैं कि
सबसे पहले कर्नल आता है विच इज़ द कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आप मल्टीपल लेयर्स आते हैं, फिर लास्ट में एप्लीकेशन लेयर आता है, और उसके बाद यूआई लेयर आता है जहाँ पे यूज़र इंटरेक्ट करता है। But we don't want to go into that deep because this is introductory session. But one thing you have to definitely remember that kernel is a core part of operating system. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक कोर पार्ट है कंप्यूटर का, और उसका भी कोर पार्ट है कर्नल। ठीक है, तो सबसे पहले कर्नल आता है, उसके अराउंड कर्नल यू कैन से इज वेरी जेनेरिक प्रोग्राम जिसके अराउंड ऑपरेटिंग सिस्टम बनती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक छोटा सा कोड दिया, ठीक है, लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट का कोड दिया, माइक्रोसॉफ्ट का कर्नल दिया। अब आप उसी कर्नल को यूज़ करके आप विंडोज़ एक्सपी भी बना सकते हो, विंडोज़ 7 भी बना सकते हो, विंडोज़ 10 भी बना सकते हो, विंडोज़ 11 भी बना सकते हो। उसका जो कोर पार्ट है वो सेम रहेगा। ठीक है, और वो कोर पार्ट जो है, कर्नल जो है, वो विंडोज़ के लिए अलग रहेगा, लेट्स से लिनक्स के लिए अलग रहेगा, मैक ओएस के लिए अलग रहेगा, सबके लिए अलग रहेगा। ठीक है, सो इट्स अ कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड थर्ड, जो भी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स देखे, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 11, लिनक्स, उबंटू, मैक ओएस। ठीक है, तो ये बहुत सारे, मतलब मैक ओएस, विंडोज़, ये सारे तो नॉन है। लिनक्स, उबंटू, जो भी कंप्यूटर बैकग्राउंड से आते हैं या फिर जो भी आईटी प्रोफेशनल्स है, उनको ये सारी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पता होंगे। लिनक्स हो गया, उबंटू हो गया, फेडोरा हो गया। ठीक है, दीज आर ऑल कॉल्ड एज लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि उसका जो कर्नल है वो लिनक्स है। ठीक है, I hope this operating system as a concept would be very much clear to you, and we'll see you in the next episode.